Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, brothers and girls of Lovely Professional University. Today we are going to go live with Mr. Swagger Sharma. And Mr. Swagger Sharma is a very famous YouTuber, and we are going to get connected to him in a very short period of time. But let's just wait for him to get connected to us. Perfect. I'm seeing a lot of people who are trying to join us right now, and I'm waiting for all of you to join me because I'm pretty sure that Mr. Sharma is a brilliant person. He is a very jolly personality, and you are going to have a very perfect session on this very wonderful evening. Perfect. We are just waiting for Mr. Sharma to get connected to us. Perfect. And even call your friends for this particular session because he is a very famous YouTuber with almost 3.48 million subscribers, and he is an engineer turned into a YouTuber. So he will get connected to us. Miss Lucifer, help me regarding what? What should I help you? I mean, you can just enjoy the session right now. Mr. Sharma is with us, and we are going to get connected to him. Good evening, sir. Hi, how are you? I am very well, sir. How are you? I'm good, I'm good. Ladies Happy and Independence Day. gentlemen, happy Independence Day to you too, sir. Ladies and gentlemen, the myth, the legend, Mr. Sharma is connected to us right now with almost 3.48 million subscribers on YouTube. And he has recently launched his new video, Lockdown with Crush. So, all of those people who are locked down with the crush right now, you can kindly go and you can enjoy his particular video. How are you, sir? I'm good, I'm good. What's your name? Right. My name is Sahas. Okay. Yes, sir. And a lot of people of our lovely professional university do enjoy your video because a lot of people had been texting me lately about your particular video, and they were like, "When is sir going to connect it? When is sir going to get connected to us?" All right, sir. The first question, we have finally got a first question, and the first question is, what or who is your famous YouTuber? Who is my favorite YouTuber? Famous YouTuber. Yeah, so I personally like a lot of YouTubers. Like I like work of TVF, the work that TVF is doing. It's really inspiring और especially वो लोग engineers ही है. And I'm also an engineer, so I really look forward to their work. और Yes, sir. सिंगल क्रिएटर्स में आई लाइक मेक जोक ऑफ उसका कंटेंट मुझे बहुत सही लगता है और सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज का टाइम वैसे भी डिजिटल एरा वाला टाइम है तो सब लोग बहुत सही सही कंटेंट दे रहे हैं. Right, so perfect. But I'd like to ask you, like, you're just 25 years old, and I mean, you have just started off with your career into YouTube. I mean, you have a lot of years to still go on with YouTube. So, how did you actually translate yourself from getting from YouTube to from an engineer background to YouTube? How did it initially start? So it was actually never planned. So it was very, accidental kind of a thing. I was there in Kufri. It's a place upside Shimla. So I I'm was there in, with my friends. I'm a Himachali. I know where Kufri Oh, is. oh, okay. So I was there at Kufri and with my friends. I was enjoying my holidays there, and I had this thing in my mind, like I have to try make some videos. I have to try making these kind of vines that were actually trending at that point of time. So I tried and I put up that video. It was a 50-second clip that I put up initially at on my channel, and luckily it actually got me an amount of audience like 2-3 thousand people actually saw that video, appreciated my work. So I uh, you know it
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बाद आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हमेशा मिलता नहीं है। तो आपको जब पहली बार ऐसा अप्रिसिएशन मिल रहा होता है, हमेशा आपको गालियां ही मिल रही होती हैं कि देखो आईआईटी के बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है। सो आप मैकेनिकल के थे? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा सही था हमारे कॉलेज में। तो हमारा तो यही वाली चीज थी कि हमेशा से ये अप्रिसिएशन ही ढूंढ रहे थे, और ये वाला अप्रिसिएशन जब उस वाले वीडियो से यूट्यूब के ऊपर मिला तो आई एक्चुअली डिस्कवर्ड कि ये जो बचपन से इतना सारा सिनेमा देखा है और बचपन से ये जो स्टोरी टेलिंग वाली चीज है, I can actually make a living out of it. I can actually make a career out of it. और वो भी I was in my last year of engineering. उसके बाद मैं बैंगलोर भी गया, मैंने 2 महीने जॉब भी की, तो I didn't get that satisfaction over there. उसके बाद 3 Idiots, तमाशा और ये वाली मूवीज जो ऑलरेडी हैं, ये आपको हमेशा आपके अंदर वो वाले कीड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं कि कुछ करते हैं, कुछ अपना करते हैं, कुछ एक बार ट्राई करते हैं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में। ये सारी बातें हमेशा दिमाग में रहती है, हर इंजीनियर के दिमाग में ये रहती है। तो लकीली मैंने वो डिसीजन ले लिया, मैं आ गया दिल्ली वापस और मैंने फुल टाइम एक बार ट्राई किया 6-7 महीने इनटू यूट्यूब। और मैंने जितना इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में एक्चुअली लोग बोलते हैं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों की जब आपको यूट्यूब ही करना था, बट आई जस्ट वांट टू टेल दोज पीपल कि आप वंस यू हैव डन विद इंजीनियरिंग और आपने ढंग से पास कर लिया एक इंजीनियरिंग एक डिसेंट कॉलेज से, तो एक्चुअली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि जो ये 8 सेमेस्टर्स हैं और ये बैक टू बैक आपके जो इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे असाइनमेंट्स, ये सरप्राइज टेस्ट, क्विजेस, ये इतनी चीजें जो आपको ऑन टोज रखती हैं, ये आपको हमेशा किसी भी नई चीज के लिए एकदम तैयार रखती हैं। तो आई थिंक इंजीनियरिंग ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है इसके लिए, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ये जो पूरा एनवायरमेंट था, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईपी यूनिवर्सिटी था कॉलेज में, तो वहां से मेरे को था कि ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं 6-7 महीने मैंने ट्राई किया, 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो उसके बाद मुझे लगा कि पोटेंशियली आई कैन डू समथिंग आउट ऑफ इट, और आई थिंक मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और उसके बाद फिर आज आई थिंक मुझे जॉब छोड़े हुए भी कुछ 1.5 साल हो गया है और फुल टाइम करते हुए भी 1.5 साल हो गया है। और तब जब मैं आया था जॉब छोड़ के तो कुछ 50,000 सब्सक्राइबर थे, आज कुछ 3.5 मिलियन के आसपास है। Yes, sir, 3.48. I was reading about it. Sir, आपकी मतलब जर्नी यहाँ से आपकी स्टोरी टेलिंग एंड बट आपको पेरेंट्स का नहीं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने थे? लाइक पेरेंट्स आपके they were perfectly fine with it. See, I think इंडिया के अंदर जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी फैमिली से आते हो, थोड़ा सा वो इंडियन सोसाइटी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वो सारी चीजें जो ऑर्थोडॉक्स चीजें चल रही हैं, वो आप नहीं मतलब डॉज कर सकते। आपको डिसीजन लेने के बाद थोड़ा टाइम तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, बट वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन, वंस यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, तो सब वर्थ इट रहता है। पेरेंट्स को कोई, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था सर, उसमें आप बता रहे थे कि आप एक स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे दिमाग में पेरेंट्स को सुनाने के लिए। राइट। सो अच्छा, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। ऑलराइट, 1 सेकंड सर। अब ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है। तो उस टाइम पे दैट वाज द पॉइंट जब मेरे घर पे पता चला कि मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह यूट्यूब के ऊपर। और क्या बोलते हैं, वीडियोस जो थी वो मैं अपने जैसे लोगों के लिए, हमारी जो एज ग्रुप है उसके लिए बना रहा था, तो उसके अंदर थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज और वो सारी चीजें भी थी। तो उनको ऑब्वियसली इस चीज से बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। माय डैड इज एन आर्मी, तो उनको हमेशा से डिसिप्लिन और उन चीजों का था। तो मैंने उस टाइम पे जब वो मुझे सुना रहे थे तो मैं एक्चुअल में ये स्पीच प्रिपेयर कर रहा था। वो होता है ना कि आप कौन से ईयर में हो अभी इंजीनियरिंग में? मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर, फर्स्ट ईयर पीएचडी। आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपने तो ये सब ऑलरेडी देख लिया होगा कि बहुत बारी क्या होता है कि आप ऐसे ग्रुप में होते हैं जहाँ पे आपने बहुत सारा काम नहीं किया होता, लेकिन कभी कभी प्रेजेंटेशन आपको ऑन द स्पॉट देनी पड़ जाती है। तो जितने टाइम में एक्चुअल में तो आपके पास 5-7 मिनट होते हैं, तो आपके लिए वो एक्सटेम्परे हो जाता है कि आप प्रिपेयर कर रहे होते हो कि 1 लाइनर्स 4-5 प्रिपेयर कर लिए और उन्हीं को आप एक्सपैंड करके बातें करोगे। तो ये चीजें मैंने इंजीनियरिंग में पहले की हुई थी। इमोशनल लाइंस पेरेंट्स के सामने इमोशनल लाइंस भी चलती है। मुझे लगता है कि इमोशनल लाइंस आपको लंबा नहीं टिकाएंगी पेरेंट्स के आगे। वो आप उस टाइम पे उनको समझा सकते हो, वो 1-2 वो होता है ना टेम्परेरी मोटिवेशन, वो टेम्परेरी मोटिवेशन दे देती है इमोशनल लाइंस। पर मेरे को लॉजिक ढूंढना था, लॉजिक मेरे पास था भी,
बस मुझे उनका एक 3-4-5 सेंटेंसेस ऐसे बनाने थे कि मैं उन तक कन्वे कर सकूं कि वाई डिजिटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर मैं उन्हें लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकता था तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन भी की है 11th-12th में, तो इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ 6 years। जब ओ मैं माय गॉड। फाइनली अपने पेरेंट्स को ये बोल रहा था 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये पूरे 4 साल इंजीनियरिंग के, तो ये पूरे 6 साल की जो जर्नी थी मैं उनको ये नहीं बोल सकता था कि व्हाट, अब ये 6 साल मैंने इंजीनियरिंग के ऊपर दे दिए हैं, पर अब मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना चाहता हूँ। वो लॉजिक के साथ ही आता, तभी उन्हें समझ में आता। तो गॉड हैज बीन काइंड, उन्हें समझ में आ गया उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप अपनी परसेंटेज मत गिराना कॉलेज में, और अगर ऐसे ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। सर बट आप अब तो आप फुल टाइम यूट्यूबर हैं, तो अब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज में? हाँ, एक्चुअली पेरेंट्स को ये यूट्यूब, पेरेंट्स नहीं, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है कि यूट्यूब का क्या पोटेंशियल है एक्चुअल में। एग्जैक्टली। इसका फाइनेंशियल पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को या किसी को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैटर करती है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, इसके अंदर और क्या चीजें हैं जो आप आगे कर सकते हो, कल को यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा। ये इस तरह के जो सवाल है, ये हर पेरेंट के दिमाग में होता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के भी दिमाग में जो यूट्यूब शुरू करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं। तो मुझे बस वो चीजें थी जो उन्हें समझानी थी, और आज वो कंप्लीटली समझते हैं इस चीज को कि इसके अंदर सब कुछ है। ये किसी भी एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट की तरह है, किसी भी एक स्टार्टअप की तरह है, कि जब आप वेरी स्टार्टिंग ट्रू। के टाइम में स्ट्रगल कर रहे होते हो, बट वंस यू गेट द फंडिंग, फंडिंग मींस अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड कैश फ्लो, तो वंस यू गेट दैट एंड उसके बाद फिर आप चीजें क्रिएट करने लगते हो, तो एक रेगुलर इनकम और रेगुलर चीजें बन जाती हैं, विच इज वेरी मच बेटर देन जो नॉर्मल एक इंजीनियरिंग लाइफ के बाद आप जॉब करते हो 9 to 5 की। एग्जैक्टली सर, बट इस जर्नी के टाइम आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर फियर था कि व्हाट इफ अगर मैंने जॉब छोड़ दी, जैसे आपने बताया कि नाउ यू आर फुल टाइम यूट्यूबर, तो जॉब छोड़ने के बाद व्हाट इफ सपोज आई बैक डाउन, या लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आई हैव टू क्विट यूट्यूब, एंड उसके बाद मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा फैमिली के, बिकॉज यू आर स्टिल वेरी यंग एंड यू आर स्टिल इन राइट। टू दैट स्टेज जहाँ पे आप डेवलप करेंगे और लाइफ में, तो वो कोई फियर था सर दिमाग में? राइट। सो ये फियर उस एज में होना जायज भी है, जब मैं सोच रहा था कि यूट्यूब, आज से 2 साल पहले, कि जब मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब को फुल टाइम भी कर सकता हूँ, वो उस टाइम पे आई एम सो सॉरी, वो नेटवर्क वाईफाई ऑफ हो गया था, लाइट चली हाँ, गई। हाँ, मैं वही बोल रहा था, मुझे लगा कि लाइट चली गई है। तो मैं यही बोल रहा था कि आज से 2 साल पहले ये वाले सारे फियर्स थे, जब मैं इस वाली इंडस्ट्री को जानता नहीं था ठीक से। बट नाउ दैट आई नो कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या पोटेंशियल है, तो आई नो कि डिज्नी के अंदर इतनी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जियो एग्जैक्टली। इतना तरह का डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, डिजिटल प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो सब डिजिटल में आ रहे हैं। तो नाउ आई नो कि आई एम इन अ सेफ प्लेस। अगर मैं अपने कंटेंट के ऊपर काम करूं, अगर मैं अपनी स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करूं, तो आई कैन सर्वाइव इन दिस स्पेस, क्योंकि डिजिटल का कंटेंट इस टाइम पे बॉलीवुड या किसी भी कमर्शियल पिक्चर से ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। नेटफ्लिक्स इज बूमिंग, एग्जैक्टली। जितना भी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जितना भी कंटेंट है, ये सब आज लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कमर्शियल सिनेमा से ज्यादा। तो मेरे को लगता है कि आज मैं बहुत सॉर्टेड हूँ दिमाग से। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, और 6-7-8 महीने ट्राई करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो मुझे तब भी मिल जाएगी, आई एम स्टिल यंग। एग्जैक्टली, एंड यू आर एन इंजीनियर, तो जॉब तो उसके हमेशा सेकंड वो कोलैटरल चलती रहती है सर। ये सारी चीजें सॉर्टेड आउट है एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बट आपके कोई एम्बिशंस वगैरह थे, आपके कोई गोल्स थे लाइफ में ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग डेज और ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, कि आई वांट टू बिकम दिस इन माय लाइफ, और यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर? यूट्यूबर, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम पे बीइंग अ यूट्यूबर वाज नॉट अ प्रोफेशन। मतलब उस टाइम पे तो ये बीइंग अ यूट्यूबर, एक्चुअली व्हाट इट एक्चुअली मींस कि यूर अ यूट्यूबर, तो आपको करना क्या है, ये भी मुझे पता नहीं था। तो ये तो कभी भी गोल नहीं था, ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत ही एक्सीडेंटल चीज थी। उसके बाद करते करते, सीखते सीखते अब समझ में आने लगा है कि क्या सीन है एग्जैक्टली इसका।
उस टाइम पे गोल बस यही था, हमेशा से गोल यही था, और मेरे को लगता है मैक्सिमम इंजीनियरिंग करने वाले लोगों का गोल यही होता है कि सबसे पहले 11th 12th में अच्छे से मेहनत करके आप आईआईटी क्रैक करो। आईआईटी क्रैक हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एनआईटी, एनआईटी नहीं होती है तो फिर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर वो सब नहीं होता है तो फिर आप एलपीयू, महाराजा सूरजमल और ये वाले सारे कॉलेज जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। और उसके बाद जब आप अंदर आ जाते हो तो आप चेस करते हो कि भाई हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है यहाँ से इस कॉलेज से, हम नेक्स्ट हम होंगे वो जो हाईएस्ट पैकेज क्रैक करेंगे, तो आप उस रेस में लग जाते हो। तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल ऐसा कोई खास फिक्स नहीं होता किसी का, शॉर्ट टर्म गोल यही होता है कि यार अपने कॉलेज से एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है और उसके बाद वील सी। बट नाउ आई नो कि वो वाली बातें कि यार सेटिस्फैक्शन होना चाहिए काम के अंदर, आपको मजा आना चाहिए काम करने में, ये सब बातें एक्चुअल में हवा बातें नहीं है। आपको एक्चुअल में पता लग जाता है जबकि आपको क्या करने में मजा आता है और आप वो कर रहे होते हो तो आपको वर्क सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। Exactly, sir. Exactly. And how do you particularly deal with competition? Because अब आप ही ने कहा कि YouTube काफी growing industry है and इंडिया में काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाता है, जैसे कुणाल कामरा भी कहता है कि इंडिया में कंटेंट भरा हुआ है हर जगह। तो हाउ डू यू डील विद कंपटीशन? कंपटीशन से कैसे डील करते हैं आप, क्योंकि कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्टीप है। राइट। सो अभी के लिए कंपटीशन मैं ऑनेस्टली बोलूं तो क्या होता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के बीच में कंपटीशन है, दोनों की सीरीज एक सेम डे पे आई, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसे देके जिसने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेगा, जिसने Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो Amazon प्राइम की सीरीज देखेगा। पर अभी यूट्यूब के ऊपर ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड है मामला, क्योंकि आपको पैसे नहीं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अगर आपको किसी का कंटेंट देखना है। तो उस सेंस में अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो यू एक्चुअली डोंट फील कंपटीशन, क्योंकि आप एक दिन में बैठ के मेरी भी वीडियो देख सकते हो और आप एक दिन में बैठ के बाकी और किसी यूट्यूबर की भी वीडियो देख सकते हो। आप सबकी वीडियो देख सकते हो क्योंकि फ्री में है वीडियो। बट हाँ, आप एक्चुअल में एक पॉजिटिव कंपटीशन वैसे लेके चल सकते हो कि आपको आसपास में देखते रहना होता है कि क्या अच्छा कंटेंट बन रहा है, मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही क्लीशे लाइन है, लेकिन यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ। आपको अपना जो पुराना आपने किया है उससे बेटर करना है आगे, क्योंकि आपको लंबी रेस में जाना है। आपको छोटी मोटी चीजों में फंसना नहीं है कि मेरे इतने इस वीडियो पे इतने व्यूज आए, उसके इतने व्यूज आए। आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा कंटेंट बनाना सीखना है इन ऑल। से क्वेश्चन अभी कमेंट सेक्शन में किसी ने टाइप किया कि व्हेन इज योर नेक्स्ट वीडियो कमिंग? आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी सर? या सो लेटली पिछले 6-7-8 महीने से वी हैव बीन डूइंग वीडियोस ओवर 20 मिनट्स। जितने भी वीडियोस हम कर रहे हैं वो 20 मिनट से ज्यादा के हैं। तो हमें हर वीडियो के साथ थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड आई नो कि ऑडियंस को एक महीने में एक वीडियो हम लोग दे पा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हम जो भी वीडियो कर रहे हैं 20 मिनट 30 मिनट, उसमें लोगों को मजा आ रहा है, तो हम भी सेटिस्फाइड है, ऑडियंस भी उस हिसाब से सेटिस्फाइड है। लास्ट वीडियो हमने अपना ये पूरा सीरीज खत्म किया था, लॉकडाउन वीडियो क्रश, 4 एपिसोड्स थे उसके। नेक्स्ट वीडियो हम एक और प्लान कर रहे हैं जो 20-25 मिनट के लेंथ की होगी, एक फुल लेंथ कॉमेडी वीडियो होगी, और मतलब शॉर्ट फिल्म वाला फील आएगा उसके अंदर पूरा। और इसी महीने के अंदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ हम उसे रिलीज करेंगे, काम चल रहा है उसके ऊपर अभी। और मतलब वही है कि अभी जो कॉमेडी है वो कहीं ना कहीं प्रियदर्शन वाला जो टाइम था, एक भागम भाग, हेरा फेरी, वो वाला जो टाइम था, अनीस बाजनी वाला जो टाइम था, नो एंट्री, वेलकम, वो टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वैल्यू, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये सब चीजें दिखाने के चक्कर में कॉमेडी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो हम बस ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह वो वाला फेज वापस लेके आ सके इंडिया के अंदर, वो वाली चीजें वापस क्रिएट कर सके, यूट्यूब के थ्रू क्रिएट कर सके। तो उसके अंदर टाइम लेंथ और चीजें थोड़ी सी लगती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इस महीने के एंड तक आएंगी, टू बी एग्जैक्टली मोर स्पेसिफिक आपके आंसर के लिए। एंड समटाइम्स यू गेट इनटू दैट डायलेमा। जैसे मैं एक राइटर हूँ, सो मैंने अभी एक बुक पब्लिश की अपनी, तो मेरे साथ ये होता है, कॉल दिस राइटर्स डायलेमा, कि जब एक पॉइंट आता है व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ, कि मतलब व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड राइटिंग एन आर्टिकल या यू आर कंफ्यूज्ड राइटिंग अ बुक, कि समझ नहीं आता अब इसके बाद क्या कंटेंट क्रिएट करें। तो आप लोगों के साथ भी होता है ऐसे यूट्यूब में? ऑनेस्टली हमने अभी कुछ 60 वीडियोस क्रिएट की हैं अपने चैनल के ऊपर, और मैंने सुना है इस राइटर्स ब्लॉक के बारे में, मैंने पढ़ा भी है इस राइटर्स ब्लॉक के बारे में, पर लकीली मेरे साथ अभी ये नहीं हुआ है। और दूसरी चीज ना होने की ये भी है कि आई एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग।
ये एक ओ, महीने में एक वीडियो प्रोड्यूस करने का मेन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं राइटिंग में बहुत सारा टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन और शूट और एडिट करने का तो 10 ही दिन है, लेकिन बाकी के जो 15 दिन 20 दिन है वो मेरे राइटिंग प्रोसेस। तो मैं इतना ज्यादा लोड नहीं लेता हूँ अपने ऊपर कि मुझे 5 दिन में एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख के खत्म करनी है। तो मैं वो वाली चीज कर लेता हूँ। लॉकडाउन से पहले वो वाली चीज भी थी कि आप इंस्पायर हो जाते हो, आप कहीं बाहर जाते हो, आप थोड़े से लोगों से मिलते हो, आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो, बात करते हो, इंजीनियरिंग टाइम की बात करते हो। तो इंजीनियरिंग का जो वो पूरे 4 साल का मसाला है वो इतना सारा है कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है लकीली। जब वो खत्म हो जाएगा, ये राइटर्स ब्लॉक आएगा, तब देखना पड़ेगा कि कैसे उससे डील करते हैं, पर अभी तक तो लकीली नहीं हुआ है ऐसा। इंजीनियर्स की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होती है ऐसे मेरे हिसाब से, है ना? काफी फनी, बिल्कुल बिल्कुल काफी मसाले वाली होती है। मैं बिल्कुल तो बिल्कुल एमबीए वाला बिल्कुल। हूँ, उससे पहले मैंने बीए की है, तो मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है इंजीनियर्स लाइफ का। ओके। बट आपकी कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन रही है सर? बिकॉज मेरे को काफी लोगों ने टेक्स्ट किया था इस शो से पहले कि सर से पूछना कि उनकी इंस्पिरेशन कौन रही है इस पूरी जर्नी में, या अब भी किसको मानते हैं वो? मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं टाइम टू टाइम इंस्पायर होता रहता हूँ लोगों से। जैसे अभी लेटली मैंने पाताल लोक एक सीरीज है वो देखी, तो उसके जो क्रिएटर्स हैं, अभी मैंने बंदिश बैंडिट्स करके एक म्यूजिकल वेब सीरीज है, म्यूजिकल भी नहीं, वो म्यूजिक के ऊपर है। तो उसके जो क्रिएटर्स हैं, सेक्रेट गेम्स के जो क्रिएटर्स हैं, तो मैं टाइम टू टाइम लोगों से इंस्पायर होता रहता हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम कंटेंट भी बहुत ज्यादा बदल रहा है और नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं। इवन यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता रहता हूँ। टीवीएफ बहुत सारे अच्छे सीरीज प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, तो मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर होता हूँ। पर अगर मैं ओवरऑल बोलूं कि जो कांस्टेंट रहे हैं हमेशा से, तो प्रियदर्शन एक है जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जिस टाइप की कॉमेडी, जिस टाइप का ह्यूमर उन्होंने एक टाइम पे क्रिएट किया है, मुझे लगता है आज भी आप कोई भी सीन उठा के देख लो मूवी का उनका, तो यूल लाफ। तो ऐसा नहीं है कि वो पुराना हो गया है तो क्या बोलते हैं, आपको हंसी नहीं आ रही है उसके ऊपर, या वो जोक काम नहीं कर रहे। वो सारे जोक आज भी उतने ही ब्यूटीफुली काम करते हैं। इम्तियाज अली, मेरे को लगता है रोम कॉम में इम्तियाज अली से अच्छा इस टाइम पे इंडिया में कोई नहीं है जो करता है। लेटली एक दो मूवीज हैं जो इतना वर्क नहीं कर पाई है, लेकिन इम्तियाज अली ने जो क्रिएट किया है, लव आजकल, जब वी मेट, रॉकस्टार, तो डेफिनेटली तमाशा, रॉक। तो मुझे लगता है वो बहुत 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 इंस्पायरिंग काम है सारा। और राजू ईरानी, ये सब लोग, ये जितने भी बड़े बड़े स्टोरी टेलर्स हैं इंडिया के, मुझे लगता है ये एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन हमेशा रहे हैं। आजकल नेट के ऊपर बहुत सारी इंस्पिरेशन आ गई हैं, तो वो भी हैं जो ऐड होती रहती है, उनका सबका काम ऐड होता रहता है। तो आजकल ये तो लोग हैं। इंस्पिरेशन विनोद चल रही है सर इंडिया की। हाँ, विनोद तो आजकल की बहुत बहुत। इंस्पिरेशन विनोद, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा विनोद, सुपरस्टार बन गया सर विनोद। विनोद, मैं मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि विनोद आपको एक्चुअल में इंस्पायर कर सकता है। अगर आप सोचो तो आप ये बोलो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और मेरा नाम भी विनोद है, तो हाय हाय। तो आपके लिए ये विनोद जो अभी वायरल हुआ है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि विनोद नाम होना भी कोई बुरा नहीं है, आप वायरल हो सकते हो विनोद नाम के साथ भी। एग्जैक्टली तो सर। और रातों रात एक वायरल चीज हो सकते हो। सर मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है पर्टिकुलरली, जब when we are talking about your success and when we are talking about your success pertaining to your YouTube videos, तो आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या रहा है कि आउट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट टू एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसके पास जॉब भी थी, who was perfectly settled, who had a perfect life, but still उसका मन था कि एक YouTube की कंटेंट की दुनिया में घुसता है, and he still succeeded out of everything. डोंट। Sir? Sir, I think am I your video audible? has paused. मैं आपको दिख रहा हूँ sir clearly? Audible? Yes sir, you are audible. वो हल्का सा lag आ रहा था बीच में. Yes sir, please carry on. Yes sir, perfect. सो आई थिंक किसी मतलब आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। ये एक बहुत छोटा सा Sir, माइलस्टोन है जो मैंने अभी। 3.48 million subscribers.
हाँ जी, अभी ठीक है? Yes, sir. I'm so sorry. Yeah, perfect, sir. Yes, sir. ओके, सो आई फील कि जितना भी हमने अभी अचीव किया है, जितना भी हमने अभी किया है, ये सब बहुत नैरो डाउन करे तो दो तीन चीजों में सबसे पहला तो आपका यू हैव टू बी एम्बिशियस। आई थिंक अगर आप एम्बिशियस नहीं Mm-hmm. हो तो आई डोंट थिंक आपका हार्डवर्क भी आपको आप हार्डवर्क भी वैसा कर पाओगे। आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, तभी आप यू विल फाइंड योर वे आउट। सिचुएशन जैसी भी हो, आपके पास सब्सक्राइबर्स ना हो, आपकी वीडियो काम ना कर रही हो, आपको कुछ भी आपके फेवर में नहीं चाहो, बीट यूट्यूब, बीट एनीथिंग, आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा। एंड दैट इज द ओनली थिंग जो आपको ड्राइव करेगा कि आप हार्डवर्क भी करो, आप बाकी चीजें भी करो। तो पहली चीज तो आई थिंक एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एम्बिशियस होने के बाद यू हैव टू गिव एवरीथिंग यार। आई थिंक Yeah, जब मैं exactly. वापस आया था मैं जॉब छोड़ के, तो आई गेव इट एवरीथिंग। जो भी लगता, मतलब आपको बीट कंटेंट राइटिंग, बीट कोलैबोरेशंस, बीट रीचिंग आउट टू बिग यूट्यूबर्स की गिव मी अ चांस टू showcase my talent, Mm-hmm. I'll help your content, you give me promotions, anything you might have done it। अगर ambitious हो तो आप उस हिसाब से हार्डवर्क भी करते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज एम्बिशियस होना है। दूसरी चीज हार्ड वर्क करना है कि आप दे दो यार, जो क्योंकि ये बार बार मौका मेरे को लगता है मिलता नहीं है। एक आधी बार मौका मिलता है, उसके बाद फिर दूसरी चीज हार्डवर्क है। और थिंक जो मेरे केस में मुझे लगता है कि मेरे को बहुत हेल्प करी है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। एंड आफ्टर असेसिंग योरसेल्फ यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू लर्न। आई थिंक आपको सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई दो वीडियो वर्क कर गया और आपको पता है, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि 3.5 मिलियन, लेकिन मुझे पता है कि रियल लाइफ में कंटेंट में ये 3.5 मिलियन कुछ भी नहीं है। अगर मुझे राजू Mm. ईरानी वाला कंटेंट बनाना है, अगर मुझे अनुराग कश्यप वाला कंटेंट बनाना है, तो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और वो बहुत Exactly. लंबा वो बहुत लंबी जर्नी है जो भी तय करनी है। तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो एक दो, जैसे विनोद आज चैनल बना लेगा तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हो जाएंगे, लेकिन उसको सेल्फ रातों असेसमेंट रात. बहुत इंपॉर्टेंट रातों रात। तो उसको सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रातों रात 1 मिलियन हो गया, अपने ऊपर काम करूं कि मैं इसको 1 मिलियन से 2 मिलियन और 2 से 4, 4 से 10 कर सकूं। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्बिशियस रहो, Exactly. हार्डवर्क करो और अपने आप के ऊपर काम करते रहो यार। हार्डवर्क कर रहे हो काम में तो गधा भी हार्डवर्क करता है, लेकिन कहां तक पहुंच पाता है वाली बात है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इवॉल्व होते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। एग्जैक्टली सर। सर, कोई मैसेज है आपका पर्टिकुलर जो आजकल एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं जो अपना यूट्यूब पे कंटेंट डालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डालना चाहते हैं, लाइक एवरीवन, राइट। लाइक लिटरली एवरीवन हैज अ यूट्यूब अकाउंट जो भी यूट्यूब वीडियोस देखता है, और वो सारे चाहते हैं कि मैं भी अपना कंटेंट डालूं, मेरे को भी लोग जाने, एंड इवन माय वीडियो शुड गेट फेमस। तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज या टिप्स या ट्रिक्स फ्रॉम योर साइड सर? सी मैं एक एडवाइस देता हूँ जो मेरे को लगता है कि बहुत सही टाइम पे समझ में आई थी बात। और दैट्स द रीजन कि जब वीडियो वर्क नहीं भी कर रही थी तो भी मैं जॉब छोड़ के वापस आ गया था। और बाकी अच्छा। टिप्स ट्रिक्स की जरूरत किसी यूट्यूबर को आज नहीं है, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब के ऊपर है। आप यूट्यूब पे टाइप करोगे हाउ टू गेट मोर व्यूज, व्हाट शुड बी योर थंबनेल, व्हाट शुड बी योर टैग, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो सही नहीं है, बहुत स्मार्ट है सब लोग, बहुत यूट्यूब से सीख के यूट्यूब पे कर लेते हैं सब कुछ। पर एक चीज है जो मुझे समझ में आई थी, वो मैं बताता हूँ जब भी मुझसे कोई ये चीज पूछता है कि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपको कंटेंट बनाना क्यों। आपका अगर वाई क्लियर है तो आई थिंक, अगर हम्म। आपका नहीं भी चल रहा होगा, जैसे आपने आज एक बुक लिखी, आई एम श्योर बहुत अच्छा आप करोगे आगे लाइफ में, बहुत अच्छी सारी चीजें करोगे, और भी बहुत सक्सेसफुल किताबें आगे लिखोगे आप, और इंस्पायर करोगे और राइटर्स को। लेकिन अगर गलती से कोई बुक लिखता है और उसका नहीं कुछ हो पाता एक बुक लिखने के बाद, तो वो दूसरी बुक सिर्फ तब लिख सकता है जब उसका वो वाई क्लियर होगा कि उसको बुक लिखनी क्यों है। एग्जैक्टली, वेरी तो परफेक्ट, यस सर। तो आई थिंक यूट्यूब के ऊपर भी और कहीं भी लाइफ में आप लॉन्ग लास्ट कर जाओगे अगर आपका वाई क्लियर है। बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक पीरियड होता है, बहुत सारा आपके पास ऑब्स्टिकल, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, सब कुछ चलता रहता है और हमेशा चलता रहेगा। पर अगर आपका वाई क्लियर है तो यू विल गेट अप और आप फिर से यू विल फाइट फॉर योर वाई और आप कर लोगे, मेरे को लगता है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप 2 वीडियो डालोगे, 3 वीडियो डालोगे, 4 डालोगे, 10 डालोगे, अगर आपके पास रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो
आप सोचोगे कि चलो यार अब छोड़ते हैं, नहीं हो रहा। हम्म। लेकिन आपका वाई क्लियर होगा तो आप सोचोगे कि मैं अगली वीडियो कैसे बनाऊं, साइड बाय साइड स्मार्ट तरीके से मैं और कुछ भी करना स्टार्ट करता हूं ताकि मैं सरवाइव भी कर सकूं। पर हाँ, मेरा वाई क्लियर है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मेरे को लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मेरे को एक टाइम पे समझ में आई थी चीज, और आज अगर लोगों को समझ में आती है तो वो 100% सर्वाइव करेंगे यूट्यूब पे और Obviously. एक्सेल भी करेंगे। सर मेरे को एक अभी एक मैसेज आया है इसी में लाइव वीडियो में, एक क्वेश्चन आया है कि हु इज योर फेवरेट म्यूजिशियन? म्यूजिशियन आए, अरे बहुत सारे लोग हैं यार, मैं सबका सुनता रहता हूँ। मेरे को मतलब अभी लेटी तो बी प्राक और जानी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा मतलब एकदम टॉप नॉच चीजें कर रहे हैं वो लोग। पहले भी करते थे पर अब ज्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं जब से बॉलीवुड को थोड़ा समझ में आया है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब ठीक है, सिंगर्स में तो अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, ये सब लोग बहुत अच्छा करते हम्म। हैं। और विशाल मिश्रा, मतलब आजकल विशाल मिश्रा मैं बहुत उनके अनप्लग्ड और चीजें सुनता हूँ। तो ये सब लोग हैं जो मतलब, और मेनली मेनली बॉलीवुड और मेनली हिंदी म्यूजिक। यस सर। हेलो सर। यस सर। एम आई ऑडिबल सर? या एम आई ऑडिबल? या परफेक्ट। ऑलराइट या सर, एक और क्वेश्चन मेरे को आया अभी रिसेंटली कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम when you're not editing your videos or when you're not writing or making your videos? Because I personally think कि वो आपके लिए भी एक पॉइंट पे शायद थोड़ा सा monotonous होता होगा कि अरे यार एक महीने से यही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा let's just spice it a bit and let's just do something else. तो आप क्या करते हैं सर उस टाइम में? देयर आर टू थ्री थिंग्स। आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट। आई लव वॉचिंग कंटेंट क्योंकि मैं सीखता ही कंटेंट देख के हूँ। शॉट किस तरह से लिया जा रहा है, क्या उसकी एडिटिंग है, क्या उसके अंदर कलर्स किए हुए हैं, क्या उसकी टेक्निक है, जो कैमरा टेक्निक है। तो आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट। आई प्ले, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, जो बहुत टाइम से मैंने छोड़ा हुआ था। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। और आई स्लीप अ लॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मोटिवेशन सोना भी है जो मैं, मेरे को 9 to 5 जॉब इसलिए भी मैं नहीं कर सकता था क्योंकि आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू यू नो तैयार होके पूरा टाइम से ऑफिस, और ये सब चीजें मेरे को लगता है ये मुझसे हो भी नहीं पाता शायद, ये भी इसलिए मैं आ गया था वापस सब कुछ छोड़ के। तो यही है 3 4 5 चीजें जो मैं फ्री टाइम पे करता हूँ। Indeed, sir. And sir, एक youth के लिए आपके हिसाब से क्या मैसेज हो सकता है? What's your particular message to the youth, the entire country? सो आई थिंक मैक्सिमम लोग जो हमारा ये लाइव देखेंगे या देख रहे होंगे वो एलपीयू से होंगे, वो अभी पढ़ रहे होंगे एलपीयू के अंदर, बहुत सारे इंजीनियर्स भी होंगे। तो आई थिंक आप करो जो आप कोर्स कर रहे हो। आई नो 99% लोगों ने वो कोर्स सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वो उस टाइम पे बेस्ट उनको मिल रहा था। तो आई थिंक डिस्कवर करो अपने आप को कॉलेज के अंदर। सिर्फ जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा ये इग्नाइट ने जो पूरा ये ऑर्गेनाइज किया। आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस जो आपने ये सब Indeed, sir. ऑर्गेनाइज Thank किया you. और आप ये सारी चीजें कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें करने के बाद, ऐसी एक्टिविटीज का पार्ट बनने के बाद, यू डिस्कवर योर सेल्फ, यू डिस्कवर योर पैशन। अगर डिस्कवर नहीं भी कर पाओगे तो एफर्ट मारो, एटलीस्ट अलग अलग जगहों पे ट्राई करो। अगर मैंने वो वीडियो को फ्री में नहीं बनाया होता तो आई वुडंट हैव गॉट टू नो कि Discovered मैं myself. ये, आई वुडंट हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ कि मैं ये करने में इंटरेस्टेड हूँ और ये मुझे करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आई थिंक सारी अपॉर्चुनिटीज को जो आपको ठीक लग रही हो, यस बोल के उसको एक्सप्लोर करो। स्टडीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, बट मेरे को लगता है कि 50-50 रेशियो रहना चाहिए। आप पढ़ो भी, आप सारी चीजें बाकी करो भी। स्पोर्ट्स है, कोई आपकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलम्स है, इस तरह की कोई सोसाइटी इग्नाइट जैसी उसका पार्ट बन के काम करना हो। यू नेवर नो, यू गुड एट इवेंट मैनेजमेंट एंड यू डूइंग बीटेक। सो Yes, sir. आपको वो तब पता चलेगा जब आप करके एक्सप्लोर करोगे। तो मेरे को लगता है जितने भी लोग ये देख रहे होंगे या फिर देखेंगे, मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज ये रही कि मैंने कॉलेज में एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, और फाइनली मुझे ये चीज मिली जिसमें मुझे फाइनल सेटिस्फैक्शन मिला, और मैं इसको अब लाइफ टाइम करने के लिए कॉन्फिडेंट भी हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ। So, something is again perfectly fine. I mean, you're pretty much sorted out. But आपके parents देखते हैं क्या आपकी YouTube videos? आई डोंट वॉन्ट देम टू एक्चुअली वॉच माई वीडियोज क्योंकि मैं भी कॉन्शियस हो जाता हूँ डायलॉग लिखते टाइम, शॉर्ट्स लेते टाइम।
व्हाट टू डू यार, अब उनको भी पहले उनके भी पूरे परिवार में, पूरे खानदान में पहली बार कोई बंदा है जिसको वो फोन पर एक्ट करते हुए देख रहे हैं या टीवी के ऊपर एक्ट करते हुए देख रहे हैं, तो मैं उनको देर द पॉइंट ऑफ टाइम कि ये सब वो है जो आज का यूथ देखना चाहता है और जो आज का कंटेंट डिमांड है, तो वो समझते हैं इस चीज को और बहुत सपोर्ट करते हैं आज के टाइम पे वो। Alright, so now your parents support you for it. Yeah. All आपके right, पेरेंट्स perfect. आपको किसी भी चीज में सपोर्ट करेंगे, बस शर्त आप उसमें एक्सेल करके उन्हें दिखाओ, और उस Exactly. टाइम में एक्सेल करके दिखाओ जो टाइम एक्चुअल में आप उनसे लॉजिकली उन्हें समझा के मांग रहे हो। मैंने अपने पेरेंट्स से 7-8 महीने ही मांगे थे कि मुझे 7-8 महीने दो, आई विल शो इट टू यू कि मैं कर सकता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद उन्होंने वो 7-8 महीने दिए। अगर मैं 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा होता और मेरा कुछ नहीं हुआ होता, और फिर तो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि दे विल सपोर्ट मी जैसे वो अभी कर रहे हैं। तो ये आपका भी एक स्मार्ट डिसीजन है और एक स्मार्ट प्लानिंग है जो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वही वाली बात है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क गोज हैंड इन हैंड, तभी आप कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे। Exactly, sir. The same case was with me around. I mean, I want to be a full-time writer, but my parents said कि नहीं, full-time writer करके क्या बनेगा? तो वही कि एक झोला उठा के चला करेगा, चश्मे पहन के, खादी का कुर्ता पहन Right. के। मैंने कहा, all right, तो उन्होंने बोला कि all right, you complete your PhD, you do your PhD, complete your MBA, and उसके साथ साथ तो काम करते writing का start. So then I was like, all right, let me just give it a shot. And yes, I understand it pretty much कि how you have to balance both the things. एक वो equilibrium maintain करने वाली बात आ जाती है ना सर. बिल्कुल Right. बिल्कुल And बिल्कुल। एक और क्वेश्चन मेरे को किसी ने अभी मैसेज किया सर कि do you play any games like PUBG or Mortal Kombat? To be honest, I used to play a lot of video games and everything एक टाइम पे, पर बहुत टाइम से मैं खेलता नहीं हूँ। पर जितने अब ये गेमिंग चैनल खुल गए हैं, आई एक्चुअली फील कि मुझे खेलना चाहिए था, कि मैं भी इस कम्युनिटी का कहीं पार्ट बन जाता, मैं भी शायद थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेता अपने आप को, बट फॉर द टाइम बिंग आई डोंट। पर ठीक है, यू नेवर नो, फ्यूचर में हो सकता है मैं आपको कहीं पबजी खेलता हुआ भी दिखाई दूं अपने चैनल के ऊपर, सीख लें 2-4 महीने किसी खेल के। Exactly so. And any message for our student organization Ignite जिन्होंने ये event successful किया सर? You guys are doing really great job. Keep doing it और keep inspiring, students around you. Keep inspiring people around you. क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे इंटरव्यूज या ऐसे जितने भी पॉडकास्ट और ऐसी वाली चीजें हैं, लाइव सेशंस हैं, ये स्टूडेंट्स तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब एक स्टूडेंट था तो मैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट और लाइव सेशंस ढूंढता रहता था, सुनता रहता था, क्योंकि मुझे था कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या किसी और ने कभी सोचा था, और फिर उसने क्या किया, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके इस काम से कोई एक बंदा भी अपना करियर बना पाता है तो बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। Exactly sir. And the final question from my side, ये swagger नाम कहाँ से आपने सोचा सर? ओके, सो ये बिल्कुल वैसे वाला है कि माय रियल नेम है शिवम शर्मा नाम है मेरा। Yes, I know. तो I know. शिवम. तो ये वैसा वाला नाम है कि जल्दबाजी में रखा हुआ नाम लगता है मेरे को, कि ये मेरी क्लास में भी 3 शिवम थे स्कूल में, मेरे कॉलेज में भी मतलब लाखों शिवम होंगे जो पास हुए होंगे और होंगे आगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार चैनल का नाम रखे हैं तो थोड़ा यूनिक रखते हैं, और उस टाइम पे 2017 में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो ये स्वैगर वर्ड बहुत ट्रेंडिंग था, बहुत ट्रेंडिंग में था। एग्जैक्टली राइट। तो मेरे को बड़ा कूल लगा और मैंने सोचा कि शिवम शर्मा की जगह जैसे रफ्तार, बादशाह और ये इनके स्टेज नेम्स हैं, तो हम भी अपना ऐसे करके स्वैगर शर्मा कर लेते हैं। स्वैगर शर्मा. Exactly, sir. It was indeed a very perfect session for you, and you are very, very inspiring and motivating. And जितने भी आज हमें लोग सुन रहे हैं, जितने भी इस वीडियो के बाद IGTV पे सुनेंगे, ladies and gentlemen, just keep on working hard. मेरे हिसाब से सर आप at the latter यही बोलना चाहते हैं सबको. Just keep on working hard, believe in yourself, and जिस फील्ड में भी तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, you will be successful in that particular field. Am I right, sir? 100%. Thank you so very much, sir. And thank you so much, Ignite, for organizing this particular event. It was indeed an honor and a privilege to host you over here onto this very, very, very wonderful platform, जिसको हम social media कहते हैं and Instagram Live कहते हैं. It was my honor, sir. It was a privilege. And thank you so very much to getting connected with us on this very wonderful evening. Thank you, sir. Thank you so much, brother. Thank you. Thank you, sir.
All right, ladies and gentlemen, boys and girls, it was indeed a very fruitful event and it was very, very inspiring, very, very motivating. Just keep on working hard, just keep on working hard for your dreams. And I'm pretty sure that one day you will particularly succeed in your particular niche. And just this is the ultimate form of expression. Just keep on working hard and believe in yourself. Thank you so much, Sahas Ramal, officially signing off from Lovely Professional University, Division of Student Welfare. Thank you so very much, Ignite, for organizing this competition. I'm really very gratified and obliged towards you for organizing this event. Good evening, Sahas Ramal, officially signing off. Take care of yourself, take care of your loved ones. Bye bye.